اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں بہنوں میرے بچوں السلام علیکم۔ مجھے معلوم ہے کہ تقاریر بہت ساری ہو چکی ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ کھانا کھل جائے فوراً۔ افضال خان صاحب اور محمود صاحب یہ انتظار میں ہے کہ یہ پروگرام ختم ہو تو کھانا کھول دیں۔ انشاءاللہ آپ دل بھر کے کھانا کھائیے گا اور بڑا ڈیلیشیس کھانا ہے کراچی کڑھائی کارنر کا جو ہمارے شیراز صاحب نے ہمیں بھیجا ہے۔ تو میں صرف ایک دو چیزیں آپ سے اگر اجازت دیں تو شیئر کروں گا۔ آج اس پروگرام میں پوچھ سکتا ہوں آپ سب سے بہنوں سے بھائیوں سے کہ آپ یہاں موجود کیوں ہیں؟ وہ مجھے بتا سکتا ہے کہ آپ لوگ یہاں موجود کیوں ہیں؟ جی بتائیے۔ اس لیے کہ آپ جیسے شخص پیار کرنے والے احترام کرنے والے انوائٹ کرتے ہیں اور پاکستان کی محبت اور آپ کی محبت کے لیے اور تمام بہن بھائیوں کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم یہاں ہیں۔ میرے بھائی کرسچن کمیونٹی کو میں بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں اور میرے بھائی نے بھی آج بہت اچھی طرح سے ملی کرنے کا کے ریپرزینٹ کیا۔ اسی طرح خدا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اجاگر کے ساتھ رکھے اور پاکستان کو ہم اسی طرح سے ہر سال یاد کرتے ہیں۔ بلقیس خان جو ہے وہ ہماری کرسچین برادری کی ہماری بہن ہے اور یہ پاکستان کے فلیگ میں یہ جو وائٹ پٹی ہے یہ انہی اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے اکابرین نے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے جو یہ فلیگ تیار کیا تھا۔ اس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی جو 11 ستمبر 1948 کو جو سپیچ ہے اس نے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان جو ہے ان کو آزادی ہوگی، ہندوؤں کو آزادی ہوگی، عیسائیوں کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مندروں میں جا سکے، اپنی مساجد میں جا سکے اور اپنی عبادات میں آرام سے وہ جا سکے۔ یہ ایک مسلمان کا اعلیٰ ظرف تھا اور اس پاکستان کا جو فلیگ ہے اس کے اندر یہ وائٹ پیپر ہے، یہ اسی کی میری بہن اور جو رابلز صادق نے یہاں پہ آپ کو جو کروایا ہے گاروں سے وہ اسی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ عیسائی جو وہاں پہ ہمارے سٹیزنز ہیں، جو ہندو ہمارے وہاں پہ سٹیزنز ہیں، جو سکھ ہمارے وہاں سٹیزنز ہیں، they are the equal citizens of Pakistan. That's we respect this flag and we respect our minorities in Pakistan. اور کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ہم آج یہاں موجود کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر میں نے تقریر کی تو بہت سارے لوگ شاید اس کو تقریر سمجھے۔ میں اس طرف سے پوچھ سکتا ہوں۔ جی میرے بھائی آپ بولیے۔ جی 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 اس کے بعد 7 سال کے موقع میں مسلمان محسوس کیا جی ہم ایک الگ قوم ہے، جی قومی نظریہ پیش کیا جی جب ہمارے سیاستدان لا رہے ہیں، مگر یہ کہ وہی ایک راستہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کے لیے الگ کنٹری چاہیے، تمام رائٹس چاہیے، تمام حقوق چاہیے، غلاموں کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے ماشاءاللہ جو پاکستان مسلمان آزاد ہیں اور تمام اقلیتیں وہاں آزاد ہیں۔ جو پروپیگنڈا میڈیا کرتا ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ ہم سب پاکستان میں دیکھ چکے ہیں۔ پاکستان اسی لیے بنا تھا، جو قربانیاں دی ہیں 20 لاکھ لوگوں کی، وہ اسی لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد شہری کو طور سے۔ جی بہت شکریہ میرے بھائی۔ یہ مجھے کوئی اور بتا سکتا ہے اس طرف سے کہ جو ہم آپ کو بدو کرتے ہیں، ان بچوں کے ہم کمپٹیشن کراتے ہیں ہر سال۔ 15 سال سے میں اور میرے ساتھی جو ہیں، یاسین چوہان بھی ہر وقت لگے رہتے ہیں، علی مختاری بھی لگے رہتے ہیں، محمود کشور بیچارہ ہر وقت لگے رہتے ہیں، دوسرے میرے جو دوست ہیں بہت سارے، ممتاز کریم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمایوں خان بیٹھے ہوئے ہیں، میں کس کا نام ہوں کس کا میں نہیں لوں، ڈاکٹر تل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میاں سکلین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، راجہ زاک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں کسی کا نام نہیں لے سکوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ٹیم کا ایسا نہیں ہے۔ تو میں کسی سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ بچوں کو پروگرام یہاں پہ کیوں کراتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تو مجھے بتا سکتا ہے؟ جی میری بہن بتانا چاہیں گی؟ جی بچوں کے میں ممتاز بھائی آپ سے ہوں گا، بچوں کے پروگرام ہم اس لیے کراتے ہیں کہ ہم ان کو اپنی تاریخ کے بارے میں، اپنی آئیڈیالوجی کے بارے میں، اپنی
वतन के बारे में, अपनी कौम के बारे में, अपने मुल्क के बारे में उनको एजुकेट कर सकें, ताकि कल जब हम लोग इस दुनिया में नहीं हों तो ये जो नई लीडरशिप होगी ये उस मुल्क को, उस कौम को, उस नज़रिए को, जहाँ आपने वीडियो में भी देखा कि क्या क्या कुर्बानियाँ हमारे लोगों ने दी, फिर ये वतन जो है आज़ाद वतन मिला, तो उसके लिए हम बच्चों को एजुकेट करते हैं। रात देर तक इतनी देर बच्चों का बैठना, आपका बैठना, मैं समझता हूँ ये किसी मकसद के तहत है। और जब कोई मकसद के तहत काम होता है तो उसमें लोग थकते नहीं हैं, उसमें लोग घबराते नहीं हैं, उसमें रोटी का मसला नहीं होता है, उसमें पानी का मसला नहीं होता है, उसमें कुर्बानी होती है, लोग उसको सुनते हैं, उसको जानते हैं। तो मैं इस टेबल से भी सुनना चाहता हूँ कि भाई ये जो बच्चों का प्रोग्राम है, यहाँ हर साल 15 साल से कई एक नस्ल जवान हो चुकी है, हम करते हैं। मुमताज़ करीम भाई आप खड़े थे। जी हमारे भाई मुमताज़ भाई आप बहस के साथ, ताकि टाइम जल्दी से गुजरा है। जो मैं कहना चाहता था आपने उस वक्त कह दिया माशाल्लाह। ये आपकी यासीन साहब की और जो शक्लें बैठे हुए हैं और यासीन साहब वगैरह, इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हर साल आप लोग ये प्रोग्राम करते हैं और हम लोग को याद दिलाते हैं कि भाई पाकिस्तान की अहमियत हमें क्या है। और अगर आप ना ये प्रोग्राम करें तो शायद हम भूल जाएँ। और आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मुमताज़ भाई बहुत शुक्रिया। इसका मकसद यह है कि आप लोग सब यहाँ एक मकसद के लिए आए हैं और एक आइडियालॉजी और एक नज़रिए के लिए आए हैं। तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं 2-3 बातें सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरे पास एक किताब छोटी सी, कुदरतुल्लाह शवाब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हुए और वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। अयूब खान के ज़माने में वो सेक्रेटरी थे, फेडरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने ये किताब छोटी सी या खुदा के नाम से लिखी है और ये किताब मैंने रखी थी, अगर कोई उठा के उसको नहीं ले गया है। तो उसमें कुदरतुल्लाह शवाब साहब एक उनका उसी के पेश से छोटी सी मखज़ है बात। वो कहते हैं जब पाकिस्तान बन गया तो लोग ईस्ट पंजाब से और हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे और कहने लगे कि मैं लाहौर के वाघा बॉर्डर पर 30 दिन तक, मेरा कज़न था जिसका नाम था नेमतुल्लाह शवाब और उसकी बेगम का नाम था आफीफ़ा शवाब, उन दोनों की याद में मैं वहाँ पर रोज़ जाता था और उनको मैं कोशिश करता था कि वो पिछड़े हुए मुझे वो मिल जाएं। तो कहने लगे हर रोज़ लोग लाहौर शहर से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे और अपने पिछड़े हुए लोगों की तलाश में वहाँ पे आते थे। लेकिन जो इंतज़ार होती है, इंतज़ार इंतहाई मुश्किल चीज़ होती है। वो कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जिनके अज़ीज़ व अक़ारब मारे जा चुके थे, जिनके अज़ीज़ व अक़ारब वहाँ से उनका पता ही नहीं था वो कहाँ चले गए हैं। तो कहने लगे कि एक दिन 30 सितंबर को मैं वहाँ पे खड़ा था तो वो मेरा भाई नेमतुल्लाह शवाब मेरा कज़न था और उसकी बीवी जो है वो दोनों वहाँ पे आ गए। मैं घूमता रहा लेकिन मैं उन दोनों को पहचान नहीं सका कि भाई मेरा कज़न जो था मेरा उसके अब्बास के रहने वाले थे कुदरतुल्लाह शवाब। अकरम साहब पीछे बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल उनकी फैमिली और बहुत सारे दोस्तों की फैमिली इस पंजाब से आई है, वो जानती होंगी कि अम्बाला में बहुत सारे मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी थी। तो कहते हैं कि जब मैं वॉक कर रहा था लाइन्स के दरमियान तो एक साहब मुझे आवाज़ दी, कुदरत कुदरत। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा मैं शवाब हूँ, लेकिन कहने लगा कि वो हड्डियों का ढांचा था, उसके जिस्म के अंदर कोई ताकत नहीं थी और उसका पूरा जिस्म जो था वो नीला पीला ऐसे बना हुआ था जैसा कि ये इंसान नहीं है, एक जो है वो मुर्दा है। तो मैंने उससे कहा कि नेमत ये तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्यों ऐसे तुम नज़र आ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग कैंप में थे और कैंप में
जो हमारे मुखालफिन थे, सिख और हिंदू, मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आज जो लोग पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि उसको बनना नहीं चाहिए था, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि कुर्बानी या पाकिस्तान की जो तारीख थी या पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ जो ज़्यादती हुई वो क्या क्या थी, और क्यों हम इस आज़ादी की जंग के लिए, क्यों आज़ादी की हम जंग लड़े और क्यों उसको हम याद रखते हैं। तो कहने लगे वो हिंदू और सिख उन कुओं में जहर मिला देते थे, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नीला थोथा डाल देते थे। कहने लगे जब वो मैंने पानी पिया तो बहुत सारे मुसलमान पी के वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, लेकिन मैं बच गया, और मेरे बचने के बाद मेरी आंतें जो है कट चुकी हैं और मेरी ये हालत है कि आज मैं हड्डियों पर ढांचा हूँ। ये कुदरतुल्लाह शाह या खुदा के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, रूबी साहब आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने पूछा कि आपकी बेगम का क्या हाल है। कहने लगे अफीफ़ा ये मेरे साथ बैठी हुई हैं, और उस बहादुर खातून ने अपना चेहरा सलाखों से दाग लिया था ताकि वो बदसूरत नज़र आए। कौन सी ऐसी औरत है दुनिया के अंदर जो अपने चेहरे को सुर्ख सलाखों से बिल्कुल वो दाग ले और उसका चेहरा जो है वो अगली नज़र आए और वो बिल्कुल इंतहाई बदसूरत नज़र आए। ये उस खातून की कहानी से बेशुमार कहानियाँ हैं पाकिस्तान की तारीख के अंदर। ये लादा बात है कि हमने उसकी कदर नहीं की, उस आज़ादी की, या हमने उससे हिजरत की आपने कदर नहीं किया। तो कहने लगे उसका जो चेहरा था वो इस कदर दागदार था कि वो बहुत ही बदसूरत नज़र आ रही थी और हड्डियों का ढांचा थी। और ये मेरा सबसे सवाल है सब भाइयों से बहनों से, उसने ऐसी क्यों किया? कोई बता सकता है मुझे उस खातून ने अपना जो चेहरा सलाखों से क्यों दाग लिया? कोई मेरी बहन बता सकती है? आप अपनी इज्जत बचाने के लिए सिखों से और हिंदुओं से उन्होंने अपना चेहरा दाग लिया ताकि कोई उनकी अस्मत दरी नहीं कर सके। तो ये हमारे पाकिस्तान की तारीख है जिसके बेशुमार वाक़यात हैं, काश कि हम इस तारीख को समझ सकें। मैं क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिसका आज हम ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं 1940 में 22 मार्च को क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा दिया, सदारत का खुतबा दिया। तो उन्होंने कहा कि मुसलमान और हिंदू दो मुख्तलिफ कौमें हैं, न वो आपस में इबादत उनकी मुश्तरका है, न उनका खाना मुश्तरका है, न उनकी मुआशरत मुश्तरका है।